Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. جی وکیل صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں. آپ کے وکیل صاحب آئے ہیں ٹرانسلیشن ماسٹر. کیا تھا وہ بیسک اسٹیٹمنٹ؟ اولیاء آباد. الحمدللہ اولیاء آباد. جی اولیاء آباد صاحب آئی مین وکیل منا صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ بہت شکریہ آپ کا. اچھے ہیں جی. اور آپ کیسے ہیں؟ کیسے چل رہی ہے اولیاء بازی آپ کی؟ بتائیں. نہیں آپ ابھی تک یاد ہے؟ ارے بھائی وہ لائف ٹائم یاد رہے گا بھائی. وہ بھائی بوال چیز تھا. بھاری چیز ہے وہ. وہ بھائی منا بھائی بہت وہ اصل چیز میں ہے بھاری بھائی. چیز ہے, اس کو اتنی آسانی سے بھلایا نہیں جا سکتا. خیر آپ بتائیے اور کیسے ہیں, کیا چل رہا ہے زندگی میں؟ بس بڑھیا چل رہا ہے. آپ کی اسٹریم دیکھتا ہوں اور 2-3-4 کی اسٹریموں پہ جاتا ہوں, سب کی سنتا ہوں. ابھی تو علم کی تلاش میں ایک آیت مل جاتا تو آج سٹارٹنگ میں ایک کوئی آیت چھوٹا سا ٹرانسلیشن. آج ہاں اپنی مرضی کی کوئی بھی ہے. سورہ نساء کی 139ویں آیت. الحمدللہ میں لے کر آیا ہوں اسکرین پہ, یا ایسے ہی پڑھیں گے؟ اسکرین پہ لاؤ. واہ 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 کیا بات ہے. 139. ہاں جی جی یہ آ گئے. الذین تتخذوا. جی ہاں یہ آ گئی. الذین یتخذون کافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم عزت فإن عزت للہ جمیعا. جی وہ لوگ یتخذون اخذ نہ کرو, کافر انکار نہ کرو, للذین یہ لوگوں کافرون انکار نہ کرو, اولیاء کا, من دون المؤمنین اگر آپ نے مان لیا ہے. آگے ایبتغون عندهم عزت, یبتغون آپ کو فائدہ دے گی, عندهم العزت جو عزت, فإن اللہ عزت جو عزت اللہ کی طرف سے آئے گی, جمیع وہ جمع ہے. نہیں یہ پورا ہندی جو ٹرانسلیٹ آپ نے کیا پورا ایک بار اکٹھے کر دیجئے پلیز. اکٹھا کرنا. ہاں اکٹھا ہندی, صرف ہندی میں. وہ لوگوں یتخذون جن نے اخذ کر لیا ہے, انکار کرتے ہیں, اولیاء انہیں اپنے جو ان کو ملا ہے دوست, من دون المؤمنین ماننے سے, یبتغون جو ان کو فائدہ ہے, عندهم العزت فإن عزت للہ جمیعا تو عزت تو اللہ کے پاس ہے, آپ لوگوں سے عزت کی کیوں امید رکھتے ہو؟ جی واہ واہ. اچھا ویسے یہ جوناگڑھی جو ہے, جناب جوناگڑھی اور جالندھری کی میں نے تفسیر وہ کھولی ہے ٹرانسلیشن وکیل بھائی, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جن کی حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں, کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. تو یہ جو جالندھری اور جوناگڑھی صاحب نے ٹرانسلیشن کی ہے یہ غلط ہے پھر اس کا مطلب؟ ہاں انہوں نے غلط ٹرانسلیٹر کی. ایک بار ان پہ لعنت بھیج دو کہ لعنت بے شمار. ان پہ لعنت ان پہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا, اپن کیوں بھیجیں؟ جی سمیر بھائی ایک سوال پوچھنا تھا کہ سب سے پہلا عربی کا ترجمہ اردو میں کس نے کیا تھا؟ عربی کا ترجمہ اردو میں کس نے کیا سب سے پہلے؟ سر یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ سوال پوچھ لیا آپ نے. میں جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم سر. ابھی ولی اللہ جو تھے نا, ان کا بیٹا عبد الرزاق, شاہ عبد الرزاق دہلوی, جی جی اس نے سب سے پہلا عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹر کی تھی. تو اس نے الٹابیٹ میں 3 طرح کی بھاشا کا استعمال کیا تھا, پارسی, اردو اور سنسکرت, جن جی کو ملا کے انہوں نے یہ شبد نکالے تھے. واہ سر کیا بات ہے, یہ تو زبردست انفارمیشن تھی. ٹھیک ہے وکیل صاحب آپ سے بات کریں گے آگے بھی, مزہ آ رہا ہے بات کرتے ہوئے. ایک بھائی جڑے ہیں, ذرا ان سے پہلے بات کر لیتے 2 منٹ. ساحل صاحب ہمارے ساتھ جڑے. جی ساحل صاحب اپنا انمیوٹ کریے. بھیا کیسے ہو؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ساحل صاحب آپ کیسے ہیں؟
मैं भी अच्छा हूँ। और इच्छा मुट्टू भैया कैसे हो? जी जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। आप कैसे हैं? अच्छा, मैं एक मुस्लिम, अब पहले मैं प्रैक्टिस करता था 15 साल पहले। तो 15 साल हो गया, मैंने छोड़ दिया। तो जस्ट अभी जाके मैंने छोड़ा, फुल्ली छोड़ा एक्चुअली। 15 साल पहले अच्छा वेट वेट, मुझे बहुत। मुझे याद आ रहा है कि आप इससे पहले भी एक बार जुड़े थे हमारी लाइव में करेक्ट काफी करेक्ट टाइम करेक्ट पहले, करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ और हाँ हाँ आपने उस वक्त जो है मेरे से बात की थी, लेकिन आप कंफ्यूजन में थे उस वक्त। हाँ हाँ, बहुत सारे हम्म। बहुत बहुत कंफ्यूजन है, हाँ, अभी बहुत ज्यादा तो देख रहा हूँ मैं। अभी क्या स्टेटस है? कंफ्यूजन दूर हो गया? नहीं, कंफ्यूजन तो सारे दूर हो गए, लेकिन हाँ, और मुझे मजबूत करना है, और कंफ्यूजन मजबूत करना है मुझे। और जी। आप समझ रहे हो ना? कंफ्यूजन नहीं मजबूत करना है, मजबूत तो हो गया, लेकिन ये कुछ कुछ डाउट है जो कितना हम्म। इसको हेर फेर किया गया, कितना झूठा है। इसको जानने में भी थोड़ा मजा आ रहा जी, जी। है। तो मेरा एक दो कहिए क्वेश्चन था। कहिए कहिए। अच्छा, कुछ आयत आपको ही पता है कि इस्लाम का रूल्स है, कुछ आयत मनसूख हो चुके हैं। जी। तो मनसूख हुए आयतें कुरान में क्यों है? हम्म, अच्छा सवाल है। और कुछ, अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने एक मैंने ऐसे लाइव चैट में मैंने देखा, कुछ स्कॉलर बोल रहे थे, किसी मोमिन ने शायद पूछा था, एक्चुअली मैं फिर से नोट बता रहा हूँ। तो किसी मोमिन ने पूछा था, कुरान को बकरी ने खा लिया था, कुछ जी। आयतें या कुछ या पूरा कुरान पता नहीं। तो वो बोल रहे हम्म। थे जो वो मनसूखे आयतें थी। हम्म, ठीक है। और मनसूखे इसका मनसूखे इसका आयतें थी। ये जो दोनों कॉन्टेक्स्ट है ना साहिल भाई, ये दोनों आपस में हाँ हाँ। रिलेट करते हैं। लेकिन ये समझाने के लिए पहले मैं एक चीज आपको बताता हूँ। कुरान में मनसूख और नसीख का जो कॉन्सेप्ट है वो दो तरीके से काम करता है। यानी कि नसीख, मनसूख का जो कॉन्सेप्ट है, यानी मनसूख होना किसी आयत का मतलब रूलिंग में मनसूख हो जाना, बट रिसाइटेशन में रहना। और एक होता है रिसाइटेशन में मनसूख हो जाना मगर रूलिंग में रहना। यानी कि कोई अच्छा। आयत जो है आपके पास मौजूद है, आप उसको पढ़ते हैं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अमल में नहीं लेकर के आएंगे। अमल में आप वही लेकर के आएंगे जो नसीख है, जिसने उसको मनसूख किया। लेकिन कुछ आयतें ऐसी हैं जो रिसाइटेशन में मनसूख है, लेकिन रूलिंग में मनसूख नहीं है, रूलिंग में आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो जो आयतें कुरान के अंदर मौजूद हैं, कुरान से हटाया नहीं गया मनसूख होने के बाद भी, वो आयतें हम्म, रूलिंग में मनसूख हैं, यानी कि उनको फॉलो नहीं किया जाएगा। जैसे कि ये आयत है कुरान के अंदर कि नमाज के करीब मत जाओ शराब की हालत में। तो यहां से इस आयत अच्छा। से पता चलता है कि जब शराब के नशे में हो तब सिर्फ नमाज नहीं पढ़नी, मगर ये आयत मनसूख है। क्योंकि शराब पीना हर हाल में हराम है, क्योंकि शराब पीना जो है वो शैतानी अमल है, अगली आयत में बताया गया है। तो इस हिसाब से, ओके। रूलिंग के हिसाब से शराब पीना जो है वो हराम है। तो शराब पी करके बिना नमाज के रहना भी हराम है। तो आप उसको पढ़ेंगे तो जरूर कि हाँ। नमाज के करीब मत जाओ मत शराब की हालत में, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यानी कि बगैर नमाज के औकात में भी आप शराब नहीं पिएंगे। तो ये होता है रिसाइटेशन में रहना, बट रूलिंग में मनसूख हो जाना। अब एक आयत जो है जो रिसाइटेशन में मनसूख हो गई मगर रूलिंग में है, तो उसके लिए एग्जाम्पल है वो आयतें जो रजम रजम की आयतें हैं, रजम और रजात की आयतें। यानी कि बड़े ओके। आदमी को अपनी छाती से 10 बार दूध पिला करके उसको अपना बेटा बना लेना, और हम्म। किसी ने अगर जिना किया, एडल्ट्री की है, तो उसको पत्थर मार मार करके कत्ल कर देना। ये जो आयतें हैं ये नाजिल हुई, उसके बाद वो पेपर को बकरी खा गई, और बकरी खाने की वजह से वो आयतें आज कुरान में मौजूद नहीं है, यानी कि रिसाइटेशन में मनसूख हो चुकी हैं। आप उसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं, तो पढ़ोगे कैसे? मनसूख हो गई। हाँ। लेकिन रूलिंग में आज भी है, यानी कि आज भी अगर इस्लामिक स्टेट के अंदर कोई जिना करेगा तो उसको उसी तरीके से सजा दी जाएगी, रजम किया जाएगा, पत्थर मार के खत्म किया जाएगा। और अगर कोई महिला ओके। किसी इंसान को अपनी छाती से, ब्रेस्ट से 10 बार ब्रेस्ट फीडिंग करा देगी, दूध पिला देगी, तो वो उसका दूध मुहार रजाई बेटा बन जाएगा। तो ये प्रैक्टिस में है, रूलिंग में है, मगर रिसाइटेशन में नहीं है। तो नसिक मनसूख का जो कॉन्सेप्ट है वो दो पैटर्न पे चलता है, ये कि रूलिंग में मनसूख बट प्रैक्टिस में होना, और सॉरी रिसाइटेशन में होना, और रिसाइटेशन में मनसूख बट प्रैक्टिस यानी कि रूलिंग में होना। जी भाई।
तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ मिलेगी, कौन सी आयत रूलिंग में है नसीख और और कौन सी मनसूख का आयत? कॉन्सेप्ट है, आप उसको पढ़ लीजिए, वहां पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो कुरान के अंदर आयतें आज मौजूद हैं वो रिसाइटेशन में मनसूख नहीं है, रूलिंग में मनसूख है। लेकिन जो कुरान के अंदर आज आयतें नहीं है वो रिसाइटेशन में मनसूख है बट रूलिंग में मनसूख नहीं है। अगर कोई पूछे अच्छा। कि ये पत्थर मारने वाला रजम की आयत और दूध पीने का आयत वो जो मनसूख हो चुके हैं, तो नस का आयत मांग लेना, बस खत्म हो जाएगा बात वहीं पे। या आप हदीस भी अच्छा। देख सकते हैं, सही मुस्लिम, सही बुखारी, सुनन नसाई, दाऊद, इब्ने माजा, इन हदीसों के अंदर आपको उन हदीसों उन आयतों के मुतालिक आपको हदीस मिल जाएगी जो मनसूख हो चुकी है। ब्रेस्ट फीडिंग एंड एडल्ट, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में है, यानी कि रजात के बारे में। सलीम हैज अटेंड प्यूबर्टी एज मेंशन्ड, ठीक है मुझे मालूम है ये हदीस। ये एक लड़का था जिसको अडॉप्ट किया था एक फैमिली ने, जो कि मुस्लिम फैमिली थी। जब ये बड़ा हो गया, अबू हुदैफा को लगा, ये जो कि इस फैमिली का जो एक मर्द था उसको लगा कि इस इंसान का हमारे घर के अंदर दाखिल होना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कुरान के अंदर सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 4 आ चुकी है जो ये कहती है कि तुम्हारे मुंह बोले बेटे तुम्हारे बेटे नहीं है और उनसे तुम्हारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। तो अब क्या करें? तो रसूलुल्लाह ने इसके बारे में जो है एडवाइस दी थी। अल्लाह's apostle said to her, suckle him and you will become unlawful for him, कि तुम अपनी बीवी को कहो कि वो इसको सलीम को अपनी ब्रेस्ट से 10 बार दूध पिला दे, तो ये उसका जो है रज़ाई बेटा बन जाएगा, क्योंकि मुंह वाला बेटा तो इस्लाम में एब्रोगेट हो गया, खत्म हो गया। तो ये दूध मुहा बेटा यानी कि रज़ाई बेटा बन जाएगा। तो ऐसा ही कराया गया और वो फिर उनका बेटा बन गया, ताकि उसको उसके घर आने जाने में दिक्कत ना हो। मैंने क्या बताया? मैंने बताया रिसाइटेशन में मनसूख हो गई, पर प्रैक्टिस में है। प्रैक्टिस में है तभी तो रसूलुल्लाह ने प्रैक्टिस करने के लिए बोला। लेकिन रिसाइटेशन में मनसूख कब हुई है? जिस वक्त रसूलुल्लाह ने ये बोला उस वक्त रिसाइटेशन में भी मनसूख नहीं थी, उस वक्त रिसाइटेशन में भी थी वो आयत, क्योंकि इसी के मुताबिक हमें हदीस मिलती है कि हम जो है रज़म और रज़ात की आयतों को तिलावत किया करते थे। आयशा की हदीस है कि लोग जो है रज़म और रज़ात की आयतों को पढ़ा करते थे, लेकिन जब रसूलुल्लाह की वफात हुई तो वो आयतें मेरे एक कागज पर लिखी हुई, एक पर्चे पर लिखी हुई मेरे बिस्तर पर रखी थी तकिए के नीचे। जब रसूलुल्लाह की डेथ नजदीक थी, उनका इंतकाल हो गया, तो हम उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए बिजी थे, कामों में बिजी थे। तो उस वक्त एक टैम शिप जो आई और वो आकर के उस पर्चे को खा गई जिस पे आयत लिखी हुई थी। तो अब वो आयतें जो है वो रिसाइटेशन में मनसूख हुई हैं, प्रैक्टिस में नहीं, क्योंकि इनका जो हवाला है या इनकी जो प्रैक्टिस है वो ऑलरेडी अहादीस मुबारका में मौजूद है। जैसे कि ये हदीस है आपके सामने सही मुस्लिम की, जिसके अंदर उसको प्रैक्टिस कराया गया है सलीम के मामले में, जो कि बेटा है मुंह बोला, किसका? अबू हुज़ैफा का। अबू हुज़ैफा और उसकी बीवी का मुंह बोला बेटा ही है। तो इसको जो है घर में आने जाने में दिक्कत ना हो, तंगी ना हो, क्योंकि मुंह बोला बेटा एब्रोगेट हो चुका है, तो इसको शकल कराया गया अबू हुज़ैफा की बीवी से 10 बार। तो ये प्रैक्टिस में है और ये आज भी प्रैक्टिस में है ऑन बिहाफ ऑफ दिस हदीस एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट हदीस जो कि आयशा ने कही है कि बकरी आई और आकर के आयत खा गई। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं। एक बहुत लॉन्ग डिस्कशन हो गया एक टॉपिक पे और आई होप रिपीट होगा अब इसके बाद जो है। ठीक है सिद्धार्थ भाई, तो जी साहिल साहब से नेक्स्ट क्वेश्चन move कोई on हो तो करते ले हैं। लें, कोई जी नेक्स्ट जी कंफ्यूजन हो सर तो, एक क्वेश्चन और। नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन। जी जी। अच्छा, सूरा फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, तो नहीं, ये तमाम तारीफ अल्लाह अल्लाह के कहाँ लिए। है? सब तारीफ अल्लाह के लिए। सूरह फातिहा की पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम आलम के रब के लिए ही तमाम तारीफें हैं, यानी कि तमाम तारीफें जो है वो तमाम आलम के रब के लिए है। अब वो कौन है वहां अल्लाह नहीं लिखा हुआ। हाँ, जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो लिल्ला क्यों लिखा हुआ है, अल्लाह क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि सर लिल्ला क्यों कुरान के अंदर जो है वो चंद आयतों के अंदर जो है अल्लाह लफ्ज है, ठीक है, और अल्लाह का मतलब होता है प्रॉपर नाउन, एक गॉड का नाम। लेकिन लिल्ला और इला ये गॉड का डेफिनेशन है, गॉड का एट्रीब्यूट्स है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है रब की बात हो रही है, यहाँ पर रब की, जो कायनात का जहान का मालिक है, रब है, उसकी बात हो रही है। अल्लाह का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह नहीं है सर नहीं है अल्लाह। सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मगर सवाल यह है कि अल्लाह ताला आयत में नहीं है, क्योंकि अलहम्दु, हमद जो है, तारीफ जो है लिल्लाह की है, इला की है, माबूद की है। कौन है माबूद? रब। जो रब है किसका? आलमीन, तमाम आलमों का।
اللہ نہیں ہے, لیکن ٹرانسلیشن میں اللہ ہے, کیونکہ ہمارا قرآن جو ہے وہ اللہ نے نازل کیا ہے, تو ہمارا الہ اور ہمارا للہ اور ہمارا پیلا وہ اللہ ہے. اوکے, تھینک یو. اس آیت پہ ایک اور کانٹیکسٹ بتا دوں میں آپ کو, کیونکہ آپ ایکس مسلم ہیں تو آپ کے کام آئے گا. اس آیت کے مطابق آپ جو ہے محمد کی پروفٹ ہوڈ کو اور ان تمام 4 آیتوں کو غلط ثابت کر سکتے ہیں جن کے اندر محمد کا ذکر آیا ہے. کیسے, میں بتاتا ہوں. کیونکہ محمد کا نام ہے محمد, جس کا مطلب ہوتا ہے دا پریز ون, جس کی تعریف کی جائے وہ, رائٹ. محمد, محمد, حمد کا مطلب تعریف اور منہ کا مطلب وہ جس کی تعریف کی جائے, محمد. تو اس آیت کے مطابق قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف, ساری کی ساری تعریف اس کے لیے جو عالم کا رب ہے. تو سوال پوچھے مسلمانوں سے, کیا محمد عالم کا رب ہے؟ جواب ملے گا نہیں. وہ عالم کے رب کا میسنجر ہے, پروفٹ ہے, رسول ہے. تو جب وہ عالم کا رب نہیں ہے بلکہ رب کا رسول ہے, تو پھر وہ پریز ون تعریف کیا گیا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹ میک سینس فار یو ساحل بھائی؟ اس کے اوپر میں نے اسٹریم کیا ہے اور میں نے یہ بتایا ہے اس کانٹیکس میں جہاں میں نے یہ بتایا تھا کہ ان تمام ڈنگر کو اور بےمان یونین کو میں نے چیلنج کیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے میرے ساتھ ان 4 آیتوں کے اوپر آ کر کے ڈیبیٹ کر لو جہاں پر محمد کہا گیا ہے اللہ کا رسول, تعریف کے لائق. تو قرآن کی چیپٹر نمبر 1 کی آیت نمبر 1 کے مطابق کوئی بھی تعریف کے قابل نہیں ہے سوائے عالم کے رب کے. تو اگر تم مانتے ہو کہ محمد عالم کا رب ہے تو پھر تو وہ محمد ہے, تعریف کے لائق ہے. اور اگر تم نہیں مانتے کہ وہ عالم کا رب ہے تو پھر وہ تعریف کے لائق نہیں ہے. اٹ مینس وہ محمد نہیں ہے. ٹاپک ختم. اچھا مرتو بھائی. کیونکہ دیکھیے اگر آپ جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں یا پھر پڑھائی کرتے ہیں فلسفی کی, تو وہاں پہ دیکھنا ہر ایک ورڈ کا بہت مہتوپورن ویلوز ہیں. کیونکہ جب آپ تمام وقت مطلب شبد کو یوز کر رہے ہیں, مطلب تمام مطلب سب کے سب, مطلب ایوری تھنگ وہاں پہ, ایوری تھنگ نہیں, ایوری وہ ورڈ جب یوز ہوتا ہے تمام, اس کا مطلب جتنے بھی تعریف ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہ کچھ ورڈ ہے جو دیکھنا بہت پاورفل ہوتے ہیں, جیسے کہ تمام, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اور ایک ورڈ یوز ہو سکتا تھا کہ کچھ مطلب جو ہے کچھ تعریف اللہ کے, لیکن جب یہاں پہ تمام ورڈ یوز کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ سبھی تعریف اللہ کی ہونی چاہیے. تو یہ تو کانٹرڈکشن ہے سدھارتھ بھائی. جی